students, welcome back to Bio Jano Biology Dil Se. In previous video, we discussed about the autotrophic nutrition, types of heterotrophic mode of nutrition. Today we will discuss little bit detail about the photosynthesis. So ये जो डिटेलिंग होगा ये आपको हायर स्टडी में हेल्प करेगा. तो शुरू करते हैं. See, photosynthesis. As we know, photo means light and synthesis means putting together. So, in presence of light, सब सामान जब एक साथ में आ जाता है तब उसको बोला जाता है photosynthesis. So, in photosynthesis, what are the raw materials? The raw materials are CO2, water, sunlight, क्लोरोफिल. ये हम लोग को पता है कि ये सब एक साथ में मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ग्लूकोज बनाता है. Now, see, sun, which is the ultimate source of energy. Green plant trap the sunlight. How? With the help of chlorophyll pigment and form organic compound. And the most important thing, ये जो reaction होता है, इस reaction में oxygen release होता है. तो in this reaction, oxygen is liberated. Okay, student? That we all know. It's a general one. Now, this photosynthesis occur in two phases. It occur in two phases. One is your light phase. Another one is your dark phase. Clear? In light phase, oxygen is released. So, in light phase, oxygen is released. So, student, can you tell me which one of the raw material is required is for the release of oxygen? What will be the answer? Some of you think that it must be CO2. No. Here, liberation of oxygen done by the water. Water is a source. Water is the reason for the liberation of oxygen, not carbon dioxide. Again, I am repeating. ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये कहां से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, वाटर. वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट करता है, वहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है. प्लस एनर्जी कैरियर जो रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करेगा, एनर्जी कैरियर होता है एटीपी, दैट वी ऑल आर फेमिलियर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट वी नो इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एंड NADPH, तो ये नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ना, बहुत इजी है. N for nicotinamide, A for adenine, D for dinucleotide, P for phosphate. So, the full form of NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Or here it is written H. H means reduced form. So, in the light phase, oxygen is liberated, oxygen release होता है, plus energy carrier ATP and NADPH भी होता है जो further reaction को continue करेगा. Clear, student? And the next one is the dark phase, dark reaction, where organic compound. Now question is that कि what is organic compound? ये organic compound होता क्या है?
Organic compound means that contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. These compounds are known as organic compound. जो कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो पर्टिकुलर कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड. और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ग्लूकोज. दैट वन इज योर C6H12O6. और मैंने बोला ही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, तो इसमें ये है. सो दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लियर? एंड यहां पे जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है कहां से? फ्रॉम CO2, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होके ये ग्लूकोज या मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है. ओके स्टूडेंट, सो अगेन photosynthesis, raw materials are CO2, water, sunlight, chlorophyll. Sun, ultimate source of energy, trapped by green plants. How? By chlorophyll pigment and form organic compound and oxygen. This photosynthesis have two phases. दो फेज होता है, लाइट फेज, डार्क फेज. लाइट फेज में ऑक्सीजन रिलीज होता है और एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स भी रहता है, ATP एंड NADPH. ATP फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. NADPH, H मींस रिड्यूस्ड. किसी भी जगह पर H लग जाएगा मतलब ये रिड्यूस फॉर्म में है. NADP का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जो प्लांट के बॉडी में प्रेजेंट है ही. ठीक है? एंड इन डार्क रिएक्शन द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज. और हाँ, ये जो ऑक्सीजन आता है ये CO2 से नहीं आता है. कौन रिलीज करता है? वाटर से. वाटर जब टूटता है तब भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है. चलो अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल, मैंने बात पूछा बोला है कि क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, पर वेयर इट इज फाउंड? ये मिलता है क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. ठीक है? पर ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट है, कहां रहता है? प्लांट्स है. प्लांट्स का जो पार्ट ग्रीन है, जो पार्ट ग्रीन होता है हम लोग को पता है कि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है. तो प्लांट्स ग्रीन पार्ट्स में तुम्हारा रहता है मेसोफिल सेल्स. याद रखो अच्छे से, मेसोफिल सेल्स होते हैं. ओके? ये मेसोफिल सेल के जो वॉल होता है, along their walls क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल पिगमेंट. क्वेश्चन है कि क्यों ये वॉल्स में ही प्रेजेंट है, along their walls? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ट्रैप कर सकता है. अगर लोग के वॉल्स में प्रेजेंट रहेगा इट विल ट्रैप मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट. क्लियर स्टूडेंट? फिर से बोल रही हूं, प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट्स है उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स मिलता है जिसको बोलते हैं मेसोफिल सेल. मेसोफिल सेल का जो वॉल्स है, दीवार है, उसमें तुम्हें मिलेगा क्लोरोफिल पिगमेंट. क्वेश्चन है कि why it is found along their walls? Because
it can trap more amount of sunlight. Clear? Now move to the structure of a chloroplast, means where the chlorophyll pigment is present. So chlorophyll एक pigment है, वो pigment कहाँ present है? क्लोरोप्लास्ट में present है. क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है. ठीक है, चलो स्ट्रक्चर. द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. एज वी नो कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसे डबल मेम्ब्रेन, इसके पास दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया inner membrane. So in chloroplast figure, chloroplast इसमें दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन. Inside the inner membrane you can see some coin-like structures are present. Some coin-like structures are present. Okay? एक कॉइन, सोचो कि तुम्हारे पास ₹1 का कॉइन है. ठीक है, एक कॉइन, यहां पे जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक कॉइन को बोला जाता है थाइलाकोइड. एक कॉइन को क्या बोला जाता है? थाइलाकोइड. जब बहुत सारा कॉइन मिल जाएगा तो ये एक स्टैक बनाएगा. जब बहुत सारा कॉइन मिल जाएगा तब ये स्टैक बनाएगा. द स्टैक ऑफ कॉइन, ये जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारा कॉइन मिलके पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है. दिस वन इज नोन एज योर grana. This one is known as your grana. So coin है, एक coin, one coin is known as your thylakoid. जब बहुत सारा coin मिल जाएगा एक पिलर बनाएगा, and that pillar, the stacks of thylakoid is known as your grana. And grana is responsible for the light reaction. मैंने पहले ही बोला था कि स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेसिस 2 फेज होता है, एक लाइट फेज, दूसरा डार्क फेज. सो जो लाइट फेज है मतलब लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होता है, वो कहां होता है? ग्राना में. ठीक है, अब देखो ये जो ब्लैंक स्पेस, मतलब इसको मैट्रिक्स बोला जाता है. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स. तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को बोला जाता है स्ट्रोमा. ठीक है, सपोज ये मेरा हैंड है. ठीक है, इस हैंड में ये मार्कर है. ठीक है, तो ये जो हैंड होल्ड कर रहा है मार्कर को, तो ये मेरा हैंड हो गया मैट्रिक्स. सिमिलरली ये जो ग्राना है, ये किस कहां पे प्रेजेंट है? एक मैट्रिक्स के ऊपर. ये जो मैट्रिक्स है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा. और स्ट्रोमा इज अ प्लेस वेयर डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस. सो इन क्लोरोप्लास्ट parts are there. One is your grana, another one is your stroma. grana में होता है light reaction and stroma में होता है dark reaction. Means formation of organic compound. कैसे? By the reduction of the carbon dioxide. Clear student? चलो अब inside the matrix, means inside the stroma, you will observe जेनेटिक मटेरियल, डीएनए प्रेजेंट है और कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है. क्या मैंने बोला? जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. स्ट्रोमा में, मैट्रिक्स में राइबोसोम्स एंड डीएनए प्रेजेंट है. तो काम क्या है?
तो क्लोरोप्लास्ट itself can produce protein, can synthesize protein and own genetic material. That's why chloroplast is known as semi-autonomous organelle. Clear students? So chloroplasts have their own DNA, own genetic material and ribosome. So they can synthesize their own protein. That kind of cell organelle is known as your semi-autonomous organelle. Clear? Chalo. Next part. So first one is your light phase or light reaction. So if you see the light reaction, in the light reaction, the main thing is that splitting of water, or precisely we can say photolysis of water. Okay. Photo means light, lysis means breakdown. Photo means light and lysis means breakdown. So in the presence of light, what will happen? Water will split, break, and it release H plus and OH minus, where this O later become oxygen. Okay, and this photolysis of water is also known as Hill reaction. It is also known as Hill reaction. Okay, and energy carrier molecules, that is your ATP and NADPH formed. And last one is your dark reaction. So the dark reaction, the ultimate thing is that the carbon dioxide, CO2 reduced to form organic compound glucose. Okay, and what are the organic compounds? What are the organic compounds? The compounds that contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. And glucose have the C6H12O6. कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसलिए ये हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड. And when the glucose stored in the plant body, in which form? It's stored in the form of starch. It is stored in the form of starch. Clear, student? Now, little bit recapitulation. Photosynthesis done by CO2 plus water, chlorophyll, sunlight, form C6H12O6 plus oxygen. Clear? So there is a chemical equation for the photosynthesis where light reaction converted into chemical. Light energy, sorry, there is a light energy converted into chemical energy. So here light energy changes into chemical energy. Clear? Raw materials, carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight. Clear? One more information. ये जो लाइट है, हम लोग सब जानते हैं कि लाइट में वो जो रेनबो 7 कलर ये सब होता है,
तो कौन से लाइट में मतलब कौन से स्पेक्ट्रम में ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ज्यादा होता है? दैट इज योर ब्लू एंड रेड रीजन. सो लाइट में ब्लू एंड रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस ऑकर एफिशिएंटली. ठीक है. सो इन दिस फोटोसिंथेसिस two phases are there, light reaction and dark reaction. light reaction कहाँ होता है? ग्राना में होता है. dark reaction कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है. ठीक है. नेक्स्ट, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन लिबरेट होता है. डार्क रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. और ये जो डार्क रिएक्शन है, दिस डार्क रिएक्शन ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल. Dark reaction in photosynthesis also known as Kelvin cycle. और प्लांट का जो ग्रीन पार्ट्स है उसमें एक स्पेशलाइज सेल है जिसका नाम है मेसोफिल सेल. व्हाट सेल? मेसोफिल सेल. Along the wall of the mesophyll cells, what is present? Chlorophyll pigment. Okay, why they present along their walls? To trap more amount of sunlight. Clear student? तो ये जो था एक जनरल डिटेल था क्लास 10 के लिए, जो आपको बाद में हायर क्लास में +1 में है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जो पढ़ने में हेल्प करेगा. होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा. थैंक यू.